interquartile range. The difference between the first and the third quartiles is known as interquartile range. It contains 50% of the total frequency. So interquartile range equal to Q3 minus Q1, जिसमें के Q1 है फर्स्ट क्वार्टाइल और Q3 है थर्ड क्वार्टाइल. इनका डिफरेंस ही इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है. और इसके मेरिट्स डिमेरिट्स उधर दिए हुए हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ. मेरिट्स ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज. It is simple to calculate and easy to understand. Number 2, it is not affected by the two extreme values of the variable. Demerits of interquartile range. It is based on middle 50% items only. Number 2, it is not amendable to algebraic treatment. तो अब इंटरक्वार्टाइल रेंज के बाद में क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज. The half of the difference between the first and the third quartiles is known as semi-interquartile range or quartile deviation. It is denoted by QD. So QD equal to ये जो Q3 minus Q1 जो interquartile range था उसका ये सेमी है यानी कि हाफ है. तो Q3 minus Q1 upon 2. Coefficient of quartile deviation is defined as coefficient of QD इक्वल टू ये जो QD है ऊपर और इसके अपॉन में जो है ऊपर जो माइनस है उसकी जगह प्लस करके लिख दिया. ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया. तो दिस इक्वल टू Q3 माइनस Q1 और अपॉन में Q3 प्लस Q1. सिमिलरली द इंटरडेसाइल रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड नाइन्थ डेसाइल्स. सो इंटरडेसाइल रेंज इक्वल टू D9 minus D1. It contains 80% of the total frequency. The percentile range is defined as PR equal to P90 minus P10. ये percentile range हो जाता है. It contains middle 80% observations. ठीक है, तो ये हुई. अब इनमें पहले हम क्वार्टाइल डेविएशन की मेरिट्स डिमेरिट्स देखेंगे, फिर औरों के देखेंगे. तो मेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. नंबर 1, it is rigidly defined. Number 2, it is easy to calculate and simple to understand. Number 3, it is not unduly affected by one or two large or small values. Number 4, it can be computed while dealing with open-end distribution. Demerits of quartile deviation. It is not based on all the observations. Number 2, it is not capable of further algebraic treatment. Number 3, it is much affected for fluctuations of sampling. Usage of quartile deviation. Number 1, due to easy calculations, it is generally used in elementary descriptive statistics. Number 2, it can be used safely when the distribution is open and where it is impossible to find other measures of dispersion. Number 3, it is more appropriate in the case of attributes and when frequency distribution is open-ended. Merits of percentile range. Number 1, it is simple to understand and easy to calculate. Number 2, it is better measure than interquartile range since it is based on middle 80% observations. Now demerits of percentile range. It is not based on all the observations. Number 2, it is not amendable to further algebraic treatment. अब हम इन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे. एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट इंटरक्वार्टाइल रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. वेट हैं LBS में ये 55, 67, 84, 56. तो ये कम ज़्यादा सभी तरह के इसमें मिक्स करके दिए हुए हैं. सॉल्यूशन सीरियल नंबर इन पे डाल दिए. नंबर 1, 2, 3 ये जितने भी हैं 15 हैं ये. और वेट अरेंज कर लिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में. तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है ये 40 है. यहाँ पे पहले ये लिख ली. इसके बाद इसमें हमें जो दिखाई दे रहा है ये 45 है, फिर 50 है. तो ये सब हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके लिख लिए. 55, 56, 58, 60, 67, 70, 72, 75, 82, 84, 90, 96 ये सब हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए. तो Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ
n+1/4 आइटम इक्वल टू n की वैल्यू है 15, ये टोटल गिनती में ये 15 है, तो 15 + 1/4 आइटम, तो ये 16/4 यानी कि फोर्थ आइटम। और इसमें फोर्थ आइटम हम यहाँ पे देख लें, नंबर 1 2 3 4, फोर्थ आइटम है ये 55, तो ये Q1 हो गया। सिमिलरली Q3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × n+1/4 आइटम, दिस इक्वल टू 3 × ये इतना जो अभी हमने निकाला था 4, तो 3 × 4 ये 12th आइटम, इसमें देख लें हम 12 में नंबर पे ये 82, ये Q3 हो गया। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR इक्वल टू Q3 - Q1 इक्वल टू 82 - 55 इक्वल टू 27, ये आंसर हो गया। Find out interquartile range for the following data regarding marks obtained by 40 students in an examination. Marks ये क्लास इंटरवल में 1 से 10 के बीच में मार्क्स हैं। नंबर ऑफ एग्जामिनीज ये 5, ठीक है। 11 से 20 के बीच में 8 स्टूडेंट्स के आए हैं। इसी तरह से ये 10 लेंथ के जो हैं ये दे रखे हैं हमको, ये यहाँ पर क्लास इंटरवल्स, तो इनका टोटल है 40 स्टूडेंट्स है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूसिव सीरीज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव एज बिलो। मार्क्स को हमने x मान लिया और यहाँ पर 0.5 पहले और 0.5 बाद में जब ले लिया तो ये हो गया 0.5 से 10.5, और फिर 10.5 से अगला स्टार्ट किया, इसमें 0.5 कम करके, तो ये 10 का डिफरेंस एक्चुअल यहाँ पर ये हो गया। 10 लेथ के ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स बन गए। यहाँ पर ये 0.5 पहले 0.5 बाद में, फिर इससे 0.5 पहले 0.5 बाद में, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस 10.5 यहाँ पे है तो 10.5 से यहाँ पे फिर ये 20.5, फिर ये 20.5 यहाँ से, इस तरह से बन गए। नंबर ऑफ एग्जामिनीज ये फ्रीक्वेंसी एफ है, ये सारे हमने यहाँ से एज इट ये लिख लिए, और फिर इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF ये 5 है, +8 13, +12 25, +9 34, +6 40, टोटल 40 है ही, ये हमें पता है पहले से ही। फॉर Q1 n/4 देखेंगे हम, 40/4 इक्वल टू ये 10th आइटम, ये हम अभी आपको दिखा देंगे। इट लाइज इन 13 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुज जो है क्लास इंटरवल इज 10.5 से 20.5। सो Q1 इक्वल टू ये फॉर्मूला है हमारे पास में, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट करके अभी हम निकालेंगे। अभी मैं ये और दिखा देता हूं आपको। फॉर Q3 के लिए 3n/4, ये जो n/4 आया है हमारा 10, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 30th आइटम, इट लाइज इन 34 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हुज क्लास इंटरवल इज 30.5 से 40.5। तो ये हम देख लेते हैं, इसमें 10th आइटम और 30 आइटम अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये यहां तक तो 5 ही है, इससे आगे 10 यहाँ पे आ रहा है इसके 13 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारी क्लास इंटरवल ये है 10.5 से 20.5। स्मॉल l इसकी लोअर लिमिट 10.5 हो गई, और इसकी फ्रीक्वेंसी f ये हो गई 8, और i की वैल्यू यहाँ से इनका डिफरेंस जो है वो 10, इसकी जो लेंथ है, और CF जो है इससे पहले वाले का ये 5 लगेगा। और जबकि जो Q3 के लिए जो 40 था तो वो 40 तो जो है, सॉरी Q3 के लिए 30 है, 30, तो 30 जो है इसके अंदर आ रहा है, यहाँ तक तो 25, इससे आगे 30 यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी सीध में यहाँ पर ये इसका क्लास इंटरवल हो गया, ये इसमें स्मॉल l की वैल्यू हो गई 30.5, और i तो इनका डिफरेंस जो है 10 है, और ये f हो गया 9, और इसकी सीध में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर वाले की लगेगी, ये 25 CF की वैल्यू लगेगी, और ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो Q1 का ये फॉर्मूला है l + n/4 - CF ब्रैकेट में इंटू I/F, जो वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाई थी वो सारी वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट कर दी इसमें, और कैलकुलेट करके ये आ गया 16.75 मार्क्स। और Q3 के लिए ये हमने अभी आपको दिखाई दिया है ये उसमें, तो ये Q3 इक्वल टू फॉर्मूला ये है, बस इसमें यहाँ पर इस जगह पे 3 का मल्टीप्लाई हो गया, और उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल l, f, CF ये सब जो अभी मैंने आपको दिखाई वो रख दिया। i तो सेम है, बाकी सब चीजें जो अभी हमने दिखाई यहाँ पर ये पुट कर दी इसमें, और ये कैलकुलेट करके 36.06 मार्क्स ये आ गया।
तो इंटर क्वार्टाइल रेंज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 इक्वल टू Q3 है हमारा ये इतना रख दिया, माइनस Q1 जो है हमने ये निकाला है इतना रख दिया, इनका डिफरेंस 19.31 मार्क्स, ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल 3, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स हैं ये इतने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सॉल्यूशन में अरेंजिंग द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी हैव, सीरियल नंबर इन पे डाल लिए 7 है और इनको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हमने लिख लिया। तो Q1 है n+1/4 आइटम, n की जगह यहाँ पर ये 7 है तो 7+1/4 मीन्स ये 8/4 यानी कि सेकंड आइटम, यहाँ पे सेकंड आइटम है ये 150। इसी तरह से Q3 इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × n+1/4 जो कि यहाँ पे आ रहा था ये हमारा 2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके ये 6th आइटम 6 नंबर पे है ये 400, ये Q3 हो गया। सो क्वार्टाइल डेविएशन QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2, ये हमारा Q3 माइनस Q1/2 कैलकुलेट करके 125 मार्क्स आंसर आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, तो ये Q3 माइनस Q1 अपॉन में यही चीज लिखी हुई है माइनस की जगह प्लस करते हुए, और ये 250/550, तो ये 0 कैंसिल हो गया और 5 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 11, 5/11 ये आ गया, या 0.45 आंसर। एग्जाम्पल 4, फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट मंथ्स 1, 2, 3 से लेकर 12 तक, और इनकम इन रुपीज 39, 40, 40, 41, 41, इस तरह से ये हमें दे रखे हैं। सॉल्यूशन, सीरीज इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, हियर कैपिटल N इक्वल टू 12, Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n+1/4 आइटम इक्वल टू कैपिटल N की जगह 12 रख दिया यहाँ पर, तो ये आ गया साइज ऑफ 3.25 आइटम। तो क्योंकि ये 0.25 इस तरह से आ रहा है तो ये हम इसमें कैसे देखेंगे, यहाँ पर तो थर्ड आइटम है, फोर्थ आइटम है, ये है, तो इसको हम ऐसे कर रहे हैं, साइज ऑफ 3 प्लस बाकी बचा ये 0.25 है 1/4, और 1 को कर लिया हमने 4-3, ठीक है, 4-3/4 आइटम, इस तरह से। तो ये साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस ये 1/4 जो लिखा हुआ है ये हमने कर दिया 0.25, और ये फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम, तो ये थर्ड आइटम है यहाँ पर 40 लिख लिया, प्लस 0.25 लिखा हुआ है, और ये फोर्थ आइटम है 41 माइनस थर्ड आइटम है 40, तो ये कैलकुलेट करके आ गया ₹40.25। इसी तरह से Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 × n+1/4 आइटम, कैपिटल N की जगह ये रखते हुए 12, ये हमने निकाला था 3.25, इसमें 3 का मल्टीप्लाई है, 3 × 3.25, तो ये हो गया साइज ऑफ 9.75 आइटम। तो साइज ऑफ 9th आइटम प्लस 0.75 इंटू 1 जो है, तो इसको कर लिया हमने 10th आइटम माइनस 9th आइटम, क्योंकि ये 9.75 जो है 9th और 10th के बीच में चल रहा है ना, तो ये 10th और 9th ये हमने ऐसा कर लिया कि 10th माइनस 9th, तो ये 1 हो गया, बस फिर इनकी वैल्यू रख दी। साइज ऑफ 9th आइटम है हमारा ये 43 रख दिया, प्लस 0.75, और ये 10th आइटम है हमारा 44, और ये 9th आइटम है 43, ये कैलकुलेट करके ₹43.75। सो क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2, ये Q3 है हमारा इतना, ये आ गया, माइनस Q1 है हमारा ये, और अपॉन 2, तो इक्वल टू ₹1.75 आंसर। कोफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, तो ये Q3 माइनस Q1 रखा और अपॉन में ये प्लस करके रख दिया, तो ये कैलकुलेट करके 0.042 आ गया इसका आंसर। एग्जाम्पल 5, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दे रखे हैं हमें यहाँ पे, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसके सॉल्यूशन में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली इनकी, यहाँ पे 4 + 7 11 + 15 इतने, इस तरह से क्यूमुलेटिव कर ली। Q1 इक्वल टू n+1/4 आइटम, कैपिटल N है 43 प्लस 1/4 आइटम इक्वल टू
ये 11th आइटम जो कि है यहाँ पर ये 11th आइटम यहाँ पर ये 20 हो गया ये, और Q3 इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 11 में 3 का मल्टीप्लाई ये 33th आइटम, तो 33 इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर यहाँ तक तो 26 है, इसमें 33 आइटम, तो ये है 40, ये रख लिया। तो QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, दिस माइनस दिस अपॉन 2, ये 10 आंसर। कोफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये 40 माइनस 20 अपॉन 40 प्लस 20, कैलकुलेट करके 0.333 आंसर। एग्जाम्पल 6, कैलकुलेट क्वार्टाइल मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड इट्स कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो ये हमारे यही हैं क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट जो हमने अभी निकाले हैं। तो ये साइज ऑफ आइटम दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सॉल्यूशन में इनकी क्यूमुलेटिव कर ली हमने, और ये पिछले एग्जाम्पल की तरह से ये हमने Q1 निकाला और ये Q3 निकाला, और क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 वैल्यू रख के 4 आ गया आंसर, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये Q3 माइनस Q1 और अपॉन में यहाँ पे प्लस है, ये वैल्यू यहाँ पे रख के 0.4 आ गया आंसर। तो यही होते हैं, तो ये 0.4 आंसर इसका। एग्जाम्पल 7, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेज ये क्लास इंटरवल में हमें दे रखी हैं, 10 से 20, 20 से 30, 10, 10 की लेंथ में ये हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं, और नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है 140, 620 ये हमें दे रखी है। तो इसके सॉल्यूशन में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दी है इतना 140 प्लस 620, 760 हो गया, प्लस इतना इक्वल टू इतना, प्लस इतना इक्वल टू इतना, प्लस इतना इक्वल टू, टोटल ये 2000 हो गया कैपिटल एन की वैल्यू। तो फॉर Q1 n/4 2000 अपॉन 4 ये 500th आइटम विच लाइज इन CF, ये 500 आ जाएगा, यहाँ तक तो 140 है, इससे आगे 500 इसमें आएगा, तो इस क्लास इंटरवल में आ रहा है ये, ठीक है, जिसका क्लास इंटरवल है 20 से 30। तो Q1 का ये फॉर्मूला, इसमें स्मॉल l हो गया 20, n/4 तो हमने ये 500 निकाल ही लिया है, और यहाँ पर देख लें इस इंटरवल में ये f है इसकी फ्रीक्वेंसी, और इसकी CF जो लगेगी इससे पहली वाली ये लग जाएगी 140। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे रख के कैलकुलेट करके ये 25.8065 आ गया। फॉर Q3 3n/4, जो n/4 निकाला था हमने 500, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1500th आइटम विच लाइज इन CF, ये जो है 1500 ये आ रहा है, यहाँ तक तो ये इतना है, इससे आगे इसमें आएगा 1500, तो क्लास इंटरवल ये आ गया 30 से 40, स्मॉल l ये हो गया, और f ये हो गया, और CF इसके लिए ये हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमने रख दी, कैलकुलेट करके ये 37.4747 आ गया। तो QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये दोनों वैल्यू रख करके इसमें 5.8341 आंसर, एंड कोफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये वैल्यू यहाँ पे रख के आंसर आ गया इसका 0.184 आंसर। एग्जाम्पल 8, कैलकुलेट अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड डेसाइल, 20th एंड 53rd परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो क्लास इंटरवल हमें ये दे रखे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, इसके सॉल्यूशन में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर ली है इनकी, ठीक है। और फॉर Q1 n/4, कैपिटल N है ये 100 अपॉन 4, तो ये 25th आइटम विच लाइज इन CF 25 इसके अंदर ये आ गया, तो इसका क्लास इंटरवल ये है 5 से 10, ये स्मॉल l की वैल्यू, ये f की वैल्यू, और ये CF की वैल्यू, इस फॉर्मूले रख के Q1 आ गया 10, ये आंसर हो गया। फॉर Q3 3n/4, ये n/4 जो 25 है इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 75th आइटम, तो 75th इसके अंदर आ रहा है, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये स्मॉल l हो गया 15, f हो गया 30, और CF हो गया 50। तो ये सारी वैल्यूज इस Q3 के फॉर्मूले रख के ये 19.167 आ गया आंसर। और क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये Q3 और Q1 जो अभी हमने कैलकुलेट किए यहाँ पे रख दिए, कैलकुलेट करके 4.58 आंसर। कोफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये वैल्यू यहाँ पे रख के 0.314 आ गया आंसर। फॉर D3, ठीक है, डेसाइल के लिए तो n/10 होगा, और ये थर्ड नंबर का है तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया 30th आइटम विच लाइज इन CF 50, ये 30th आइटम, यहाँ तक तो 25 है, इससे आगे 30 इसमें आएगा, तो ये हो गया स्मॉल l 10, f हो गया 25, और इससे पहले की CF हो गई ये 25। ये सारी वैल्यू
इसमें हमने D3 के फॉर्मूले में यहाँ पे रख दी, तो ये कैलकुलेट करके 11 आ गया आंसर। फॉर P20 ये परसेंटाइल है तो 100 का से डिवाइड करेंगे n/100, और ये 20 है तो 20 का मल्टीप्लाई करके इसमें ये आ गया 20 आइटम। ठीक है, कैपिटल N तो 100 है ही, 100/100 कैंसिल होकर 20 ही रहा, विच लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 के अंदर आ रहा है। इसके अंदर ये 20, क्योंकि यहाँ तक तो 7 है, 20 इसके अंदर आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 5 से 10, ये स्मॉल l 5, f है 18 और cf है 7। तो इसके फॉर्मूले में यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हमने इसमें रख दी, तो ये 8.611 ये आंसर हो गया। फॉर P53 तो 53 इंटू ये निकाला n/100, n तो 100 है ही, तो ये 53 आ गया। तो 53 लाइज इन, यहाँ पे तक 50 और 53 इसके अंदर आ रहा है, ये क्लास इंटरवल 15 से 20, ये स्मॉल l 15, f है 30 और cf है 50। ये सारी वैल्यू हमने इसके फॉर्मूले में रख दी। यहाँ पे P53 आई तो सभी में 5 है ही, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके 15.5 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, कंप्यूट सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इसके सेंट्रल साइज ये है 1, 2, 3 से लेके 10 तक, और फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है हमको इसकी। तो इसकी हमने सॉल्यूशन में क्लास बना ली इसकी x से डिनोट करके। तो ये सेंट्रल साइज है 1, तो 1 के इधर उधर 0.5 लगाते हुए 0.5 से 1.5 तक ये हो गया, और फिर इसमें फिर 0.2 से 0.5 इधर उधर करते हुए ये 1.5 से 2.5 हो गया। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल इनके बना लिए। उन क्लास इंटरवल के ये सेंटर हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल बना लिए। बाकी फिर ये फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर उतार दी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनकी कर ली, और ये कैपिटल N बन जाएगा हमारा 123, और इससे कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, वो ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन ही होता है। तो इसके जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं उससे जो है Q3 - Q1/2 हो जाएगा ये, और इट्स कोफिशिएंट जो हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किए हैं। तो उस तरह से ये हमने कर लिए, इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। इसी तरह से आप सारे सवाल करिए अच्छी तरह से और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।